Let us continue. So we have completed these doubts 7, 11, 12 and 10. Now question number 13. Take out profit and loss chapter. परसेंटेज चैप्टर में जितने भी डाउट्स है वो भी हम लेंगे, देखते हैं, मतलब 1 घंटे में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा। और परसेंटेज चैप्टर के अगर समझो सारे डाउट्स नहीं हो पाते तो फिर मैं उतना ही पार्ट, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में टोटल 2 वर्कशीट है, हालांकि वो ये 9th ही चैप्टर है लेकिन इसमें 2 वर्कशीट है, तो जितने डाउट कंप्लीट होते हैं उतना ही पार्ट में एग्जाम में डालूंगा। आई वांट टू कीप प्रॉफिट एंड लॉस एज अ होल चैप्टर फॉर द टेस्ट and percentage chapter whatever we are able to complete. Okay, so don't worry, let us see in 1 hour how much we are able to do. Question number 13. The ratio of the cost price and the selling price is 4:5. Then find the profit percent. Very simple question. पहले तो हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये सबको पता है। अभी प्रॉफिट जो है उसको हम लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, एसपी, the ratio of cp and sp is 4:5. So cp upon sp is equal to 4/5. So we can directly say cp equal to 4x, sp is equal to 5x, and we can say profit is equal to sp minus cp, that is 5x minus 4x which is x। बस यहाँ इस फॉर्मूला में अभी डाल दो। आप चाहे तो ये फॉर्मूला में भी डाल सकते हैं, ये सीपी एसपी का वैल्यू और कैलकुलेट करो, या फिर ये पहला फॉर्मूला वहां पे डाल। हम फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। प्रॉफिट डायरेक्टली हमने निकाला x अपॉन सीपी है 4x मल्टीप्लाइड बाय 100, एक्स एक्स कैंसल, 100 अपॉन 4 25%। तो आपको ये पता है कि जब रेशो दिया रहता है तो उसको हम एक कांस्टेंट मल्टीपल लेते हैं, x ले लो, k ले लो, विच एवर इज इजियर फॉर यू, विच एवर इज यूज टू। समझ में आया सबको? sir. Next question number 13 completed, 16 and 18. By selling an article, Michael earned a profit equal to 1/4 of the price he bought it. If he sold, I cut कर दो यहाँ, he sold it for rupees 375, what was the cost price? देखो once again, by selling an article, Michael earned a profit equal to 1/4 of price he bought, मतलब ये cost price है। So we can write it like this. जब भी हमें कुछ चीजें पता नहीं रहते तो उसको हम वेरिएबल के फॉर्मेट में ले सकते हैं। So in this question number 16, Michael is earning a profit is equal to 1/4 of the price he bought it. Bought it means cost price, खरीदी कीमत। So profit is equal to 1/4 of CP. Okay. Now we are supposed to find out CP here, so we will assume let CP is equal to x. बार बार CP लिखने के अलावा अच्छा है x लिखो। So let CP is equal to x. So we can say now profit is equal to 1/4 into x. Okay. This is one condition given, and we have written profit is equal to 1/4 times x. Second condition is if he sold it for rupees 375. So then that article is sold for rupees 375. That means SP is also given. SP is rupees 375. Now we know the formula of profit is equal to SP minus CP. SP here is 375 minus CP we have taken as x. अभी इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, दोनों के दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट ही है।
मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड इक्वल ले लो. So we can say from 1 and 2, 1 by 4 times x will be 375 minus x. Simplify, get the answer. x लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1 by 4x plus x equal to 375, that is 5 by 4 times x equal to 375. X is equal to 375 into 4 upon 5. 5 6 5 7 35, 5 5 5 5 25 into 4 75, 75 4 300. So x is 300 rupees. X means CP. So option number second is correct. ठीक है. So यहाँ पे हमने क्या किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस पता नहीं था, उसको हमने x लिया और प्रॉफिट के दो कंडीशन से हमें दो इक्वेशंस मिले और उनके राइट हैंड साइड हमने इक्वल ले ली. ठीक है. प्रॉफिट का पहला कंडीशन तो क्वेश्चन में ही दिया था कि इट इज 1 by 4 times CP. Second, we already know a profit is SP minus CP, and then we equated the right hand sides. Is it clear? Yes, sir. Next, 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18. The cost price of 19 articles is equal to the selling price of 16 articles. Gain percent is. Very simple question once again. See, cost price of 19 articles. समझो ये CP जो है ये एक आर्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस है. टोटल यहाँ पे है 19 आर्टिकल. सो 19 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 19 मल्टीप्लाइड बाय CP. Now what is told is cost price of 19 articles is equal to, this is equal to selling price of 16 articles. So एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने SP लिया तो 16 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आएगा 16 इंटू SP. सो 19 इंटू CP इज इक्वल टू 16 इंटू SP. यहाँ से हम CP अपॉन SP लिख सकते हैं 16 अपॉन 19. And since they are these are ratios actually, so CP can be taken as 16x, SP can be taken as 19x. हमें पूछा गया gain percent. Gain percent is gain upon CP into 100. गेन यहाँ पे कैलकुलेट कर लो. गेन इज SP माइनस CP. SP है यहाँ पे 19x माइनस 16x, इट इज 3x. तो गेन आया 3x अपॉन CP है 16x into 100. x cancel. 3 by 16 into 100. So 4 4 जा 425 जा 75 upon 4. These many percentage. 75 by 4% मतलब यही ना. ऑप्शन 3. 18 as a whole 3 by 4%. Is it clear to everyone? Yes, sir. तो रेशो चैप्टर का भी यहाँ पे यूज करना जरूरी है. और कोई डाउट? 18 तक ही थे क्या? ठीक है. 16 18 कंप्लीटेड. और किसी को कोई डाउट है क्या प्रॉफिट एंड लॉस में? ओके. नाउ लेट अस मूव टू परसेंटेज. ये डाउट्स 15 मिनट में हो गए, इसका मतलब परसेंटेज चैप्टर लगभग खत्म हो सकता है. वर्कशीट 123 नंबर सर. एक मिनट. परसेंटेज नाइन्थ चैप्टर परसेंटेज.
वर्कशीट 1 के डाउट्स पहले पूछ लो। Question number 8, 8, 23, 23, 10, 10, 12, 12, 14. 14, सर 14 के बाद का वो x की क्वेश्चंस नहीं आए सर मुझे एक भी। कौन सा वाला नहीं आया? 14 के बाद के सभी नहीं आए सर। ठीक है, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? देखो, जब भी ऐसा पूछा जाता है व्हाट परसेंट, तो हमें पता नहीं है ना कितना परसेंट है, तो वी विल टेक इट एज x%. So 0.01 is what percent of 0.1? तो ये जो आंसर है, आंसर 0.01 आना चाहिए, and it is what percent of 0.1? what परसेंट हमें पता नहीं है, तो हम लेंगे x% of 0.1 is equal to 0.01. x% को हम लिख सकते हैं x/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 0.1 is equal to 0.01. Simplify, calculate the value of x. So x/100 into 0.1 means 1/10 is equal to 1/100. दोनों साइड 100 कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 10. So 10%. That is option 3 is correct. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने वेरिएबल में कन्वर्ट किया, व्हाट परसेंट की जगह x% लिया, एंड देन वी सिंप्लीफाइड. x% ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 0.01. समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. वेरी गुड क्वेश्चन. राजू बाइज गुड्स वर्थ ₹6650. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है इट इज ₹6650. नाउ ही गेट्स अ रिबेट ऑफ 6% ऑन इट. रिबेट मतलब डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट. तो रिबेट आप अगर सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 6% ऑफ द टोटल कॉस्ट 6650. इसका 6% निकालो तो 6/100, 6% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6650. 6% मीन्स 6/100. ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 इंटू 665. 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 133 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 399 रुपीज. ये क्या आया? रिबेट या फिर डिस्काउंट. अभी देखो अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर गेटिंग द रिबेट he pays the sales tax of 10%. then find the amount he will have to pay for the goods. देखो पहले तो 6% का रिबेट मिला, मतलब डिस्काउंट मिला, मतलब इतने पैसे उसको कम भरने पड़ेंगे, इतने हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. सो नाउ वी कैन से द कॉस्ट इज इक्वल टू, और वी कैन से न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू 6650 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रिबेट. रिबेट मतलब बोनस या फिर डिस्काउंट, वो हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 399 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किए तो 6251 रुपीज आ रहे. ठीक है, न्यू कॉस्ट. और इस कॉस्ट पे अभी उसको आफ्टर गेटिंग द रिबेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट अभी मिला, डिस्काउंट मिलने के बाद अभी उसका कॉस्ट आया टोटल 6251 रुपीज. अभी इस अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ रहा है 10%. सो इसका 10% निकालेंगे पहले. सो टैक्स, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ क्या होता है? 6251. So 10/100 into 6251.
दैट इज ये 0 0 कैंसिल अपॉन 10 मतलब 625.1. ओके, तो ये न्यू कॉस्ट आया 6251 और ये एक्स्ट्रा टैक्स जो एक्स्ट्रा उसको भरना पड़ रहा है वो आया 625.1. यहाँ 0.0 लिख रहा हूँ मैं. इन दोनों का सम ले लो, इतना टोटल अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा. सो टोटल पेमेंट इज इक्वल टू 6251 प्लस 625.1. ठीक है ना. तो ये था ओरिजिनल कॉस्ट. उसमें से हमें जितना डिस्काउंट मिला 399 वो माइनस कर दिया, तो ये न्यू कॉस्ट आया. कभी भी रिबेट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, जो डिस्काउंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. तो पहले डिस्काउंट माइनस कर लो, अभी जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगाओ. मतलब 10% टैक्स, मतलब 10% ऑफ दैट अमाउंट 625.1. इतना टैक्स का अमाउंट उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. तो 6251 प्लस 625.1. So total payment will be 5 plus 1 6 7 8 6876.1. These many rupees. This is the answer. पहला ही ऑप्शन है. Is it clear to everyone? यस सर. किसी ने तो कुछ डाउट पूछा. अच्छा, रिबेट सर का वो मैं मतलब, सर सेल्स टैक्स क्या होता है? अच्छा आजकल अभी सर्विस टैक्स आ गया है. जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अरे, जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म नहीं पता? स्कूल में हुआ नहीं क्या? तो ठीक है. ये सेल्स टैक्स का कंसेप्ट अभी आजकल बंद हो गया एक्चुअली स्पीकिंग. तो सेल्स टैक्स मतलब जनरली अभी वो जीएसटी में इंक्लूड हो जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों मिला के वो भी स्टैंडर्ड टैक्स आ गया जीएसटी. पहले था ये सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स मतलब जितना अमाउंट है उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देना है. दिस पर्टिकुलर अमाउंट गोज इन द पीएफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट को चला जाता है. अभी फिलहाल ऐसा समझ लो कि टैक्स मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ रहा है विच इज गोइंग टू द थर्ड पार्टी. इट विल नॉट गो डायरेक्टली टू द इवन शॉपकीपर. वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है. मीन्स सर सरकार ने हमें बेचने की परमिशन दी, इसलिए सरकार को हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं. यस यस. एंड दैट इज गुड ओनली. उससे फिर वो बाकी के काम होते हैं ना, कंट्री चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए वो टैक्स यूज करते हैं ना. बाकी के चीजों में वो टैक्स इंक्लूड होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 completed. Now next 12. ये सिंपल कैलकुलेशन है. 0.15% ऑफ 33 एज अ होल 1/3 मतलब 100/3% ऑफ 10,000. सो 0.15% मतलब 0.15 अपॉन 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100/3 अपॉन 100. परसेंट है ना, अपॉन 100 मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 10,000. ये अपॉन 100 इंटू 100 10,000 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचा 0.15 इंटू 100 अपॉन 3.
that is 15/3, which is 5 rupees. So option number 2 is correct. समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड वेर एवर देर इज परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, उसका डिनोमिनेटर 100 ले लो. इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 14. If rupees 2800 is 2/7% of a value of a house, the worth of the house in rupees is. देखो, वैल्यू ऑफ अ हाउस या फिर आप बोलो वर्थ ऑफ द हाउस, दोनों का मीनिंग एक ही है. वैल्यू ऑफ अ हाउस हमें पता नहीं, पूछा गया, so that we will assume as x, variable x. So in the 14th question we can assume that worth of house is equal to rupees x. अभी हमें बोला गया कि rupees 2800 is 2/7% of value of house. So rupees 2800 ये आंसर मिलेगा किसका? 2/7% ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस. वैल्यू ऑफ हाउस हमने लिया था x. 2/7% ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस और वर्थ ऑफ हाउस of x is equal to 2800. That is 2/7 upon 100 of means multiply by x is equal to 2800. X is equal to 2800 into 100 upon 2/7. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2800 into 100 upon 2 into 7. 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 1400 आएगा. 1400 into 100 into 7. तो ये 2 0 लगा दिए, ये 2 0, टोटल 4 0. 14 into 7 कितने होते हैं? 98. So 9,80,000 is the answer. Option 2 is correct. आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. 2800 is 2/7% of value of x, of value of house. ऐसे. Has everyone understood? Yes, sir. बाकी के लोग समझा कि नहीं? यस सर. हाँ. अभी कोई तो बोला था कि सर इसके बाद एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो हम हर एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल है एकदम. वर्डिंग में ही आप अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा. 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be how much? So a number मतलब वो नंबर हमें पता नहीं है, so we will assume it as variable x, and 120 is 20% of that number. So that particular required number जो है उसको हम assume करेंगे से x. Now what is told is 120, ये जो आंसर है ये कब आता है? If we take 20% of that number, 20% of x, वो नंबर को हमने x लिया है. That's all. 20/100 into x, 20% को हमने upon 100 लिया, of multiplication into x is equal to 120. X is equal to 120 into 100 upon 20. 0 0 cancel. 2 1s are 2 5s are 10. 600. तो ये जो नंबर है x 600 आया. अभी अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया कि 120% of that number will be. So 120% of number मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हमें अभी अभी मिला, तो 120 upon 100 into x
x is 600, ये कैंसिल कर दो, 12 6 72, so 720 is the आंसर। वैसे देखा जाए तो 100% ऑफ अ नंबर मतलब वही नंबर, 100 से ज्यादा परसेंटेज रहेंगे तो 600 से बड़ा ही आंसर आएगा। 600 से बड़ा एक ही आंसर है, ऑप्शन 4। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली टिक कर सकते थे, क्योंकि 120% मतलब उसका 100% से भी ज्यादा, तो 600 से भी ज्यादा आंसर आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चन। वैसे ही 16th क्वेश्चन देखो। 35% of a number is 175, then what percent of 175 is that number? So जो हमें चीजें पता नहीं है वहां पे वेरिएबल्स लेने हैं। 35% of a number is 175, so 35% of a number x, x क्या लिया हमने, वो नंबर लिया, a number is equal to 175, so 35 by 100 into x is equal to 175, x is equal to 175 into 100 upon 35, 35 5 जा 175 आता है क्या, चेक करो। यस करेक्ट, 35 1 जा 35 5 जा, सो x is equal to 5 into 100 500, तो x का वैल्यू हमें 500 मिला। अभी हमें पूछा गया देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। हमें पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। दैट नंबर मतलब यहाँ पे x, जो कि हमें मिला 500। व्हाट परसेंट मतलब हम लेंगे से y परसेंट, y परसेंट ऑफ 175, दूसरा वेरिएबल लिया जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। y परसेंट ऑफ 175 इज इक्वल टू 500। ओके, व्हाट के जगह वेरिएबल डाल दिया, दूसरा वेरिएबल। अभी y upon 100 into 175 is equal to 500, y is equal to 500 into 100 upon 175, that is अभी 25 से डिवाइड करो, 25 7 जा 25 4 जा 2000 upon 7, दिस मेनी परसेंटेज। 2000 upon 7 ऑप्शन में नहीं है तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। 280% है, लेकिन 2000 अपॉन 7 का कैलकुलेशन पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सो ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। लेकिन आंसर आया, 2000 अपॉन 7 ही आंसर आया। ठीक है, सर उसका आंसर 280 आता है। 280 आ रहा है। यस सर। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या लेकिन? हाँ सर। 2000 अपॉन 7, ओके वेरी गुड, आंसर आया तो बहुत अच्छा। नहीं रे बेटा, ये 285 सर 0.71% आ रहा है। हाँ बोलो। मैं भी वही करने वाला था सर, वो नहीं है। ठीक है ना, छोड़ दो, टेंशन मत, नन ऑफ दिस ऑप्शन है हमारे पास, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑल राइट, अभी ऐसे सॉल्व कर पाएंगे क्या ये सारे क्वेश्चन? सारे मतलब ये वाले 16 हो गए, 17 18 19 20, ये 4 क्वेश्चन। यस सर, आई विल ट्राई। हाँ ओके, सो with this we will stop today.
I have completed the doubts up to only question number 20 say. If you want to now एग्जाम में मैं इसके अलावा कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं डालूंगा. वर्स्ट केस अगर इन 4 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना ग्रुप पे मैसेज डाल के. आई विल गिव यू द रिटर्न सॉल्यूशन. ठीक है. ये 4 क्वेश्चन Okay, थोड़े sir. खुद ट्राई करो ताकि आपका और एक ग्रिप आ जाएगा. बस यहाँ तक मैं एग्जाम में पूछूंगा. रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर रेगुलर लेक्चर्स. मुझे याद दिलाना कि सर क्वेश्चन 20 तक लिया था आपने ऐसे. समवन शुड रिमाइंड मी क्योंकि हमारा क्लास डायरेक्टली वेडनेसडे को रहता है. Thank you all for joining. Bye. All the best for the test. Have a nice day. किसी को कुछ पूछना है? अच्छा. ठीक है. इसने पहले ही 23rd पूछा था. If 25% of a number is subtracted from a second number, the second number reduces to its 5, 6. What is the ratio of first number to the second number? ठीक है. फिर से यहाँ वेरिएबल्स यूज करो. लेट्स से फर्स्ट नंबर is equal to x and second number is equal to y. हमने अज्यूम किया उन दोनों नंबर का रेशो जो है वो आएगा x अपॉन y. ठीक है. नाउ 25% ऑफ अ नंबर मतलब है पहला नंबर है फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकंड नंबर. तो क्या हुआ कि 25% ऑफ फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, the second number reduces to its 5/6. तो हमने क्या किया अभी सेकंड नंबर से 25% ऑफ फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया. मतलब हम लिखेंगे y माइनस सेकंड नंबर से 25% ऑफ फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया. So then the second number reduces to 5/6 of itself. The second number reduces to 5/6 of itself. y में से अगर ये 25% x का 25% माइनस किया तो y कम होगा और कम होके वो कितना हो रहा है 5/6 of itself. reduces to बोला गया. reduces to its 5/6. That's all. इसको सिंप्लीफाई करो रेशो मिल जाएगा. हमें रेशो ही चाहिए दोनों नंबर का. फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर मतलब x अपॉन y हमें पूछा गया. So y minus 25/100 into x is equal to 5/6 times y. y वाले टर्म एक साइड ले लो, x वाले टर्म एक साइड ले लो. तो यहाँ आएगा y minus 5/6 times y is equal to 25/100 into x. ये 25/100 मतलब 1/4 टाइम x. ये आ जाएगा 1 minus 5/6 that is 1/6 times y is equal to 1/4 times x. मुझे x upon y चाहिए. तो रेशो कौन सा पूछा गया? रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर. सो x अपॉन y. यहाँ 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा अपॉन में 6. 4/6 means 2/3. So the ratio is 2:3. ठीक है. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. समझ में आया श्रेयस? यस सर. आप जितना वेरिएबल यूज करेंगे उतना आपको वो आसान लगेगा. ठीक है.
मन में कैलकुलेशन नहीं करना है, पेपर पे करो और वेरिएबल अज्यूम करके करो. All right, we will stop here. Thank you all. Bye. Wish you all the best for the exam. पूरा पोर्शन बता दो ना एग्जाम का. एग्जाम का पूरा पोर्शन है फैक्टराइजेशन पूरा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर और परसेंटेज का वर्कशीट 1 क्वेश्चन